ECL سے نواز شریف کا نام عدالت نے نہیں وفاقی حکومت نے نکالا تھا۔ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا معطلی کے بعد کیا ہوا؟ نہ وفاق نے عدالت کو کچھ بتایا نہ نیب نے۔ توشخانہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک۔ تحریری حکم نامے میں کہا نواز شریف نے بھی بیرون ملک جانے کی عدالت سے اجازت نہیں مانگی، نہ روانگی کے بارے میں عدالت کو بتایا۔ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت سے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے۔ دوران سماعت نواز شریف کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے ضمانت میں توسیع دے دی تھی، آرڈر کی کاپی ابھی ان کے پاس نہیں ہے۔ حکم نامے کے مطابق نواز شریف کے وکلاء احتساب عدالت کے احکامات کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر مطمئن نہیں کر سکے۔ مزید دلائل کے لیے سماعت 20 اگست کو ہوگی۔ ہم پہ دباؤ ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں، ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کریں۔ اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو، ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نہ دباؤ قبول کریں گے نہ دھمکیوں میں آئیں گے، چاہے پورا خاندان گرفتار ہو جائے۔ 18ویں ترمیم اور 73 کے آئین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کہا آج جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایوان وزیر اعظم میں کٹ پتلی بیٹھا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے۔ اپوزیشن پر دباؤ ڈال کر کٹ پتلی کی طرح چلانے کے حربے ناکام ہوں گے۔ جعلی اور کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گی۔ کورونا کے خطرات میں آصف زرداری کو عدالت پیشی پر مجبور کر کے نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا بلاول بھٹو زرداری پر اداروں کو دھمکانے کا الزام، کہا چوری کا حساب دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ کارکنوں کو ڈھال بنا کر اداروں کو دھمکاتے ہیں۔ ان کی سیاست کا محور محض اپنی چوری بچانا ہے۔ قوم کو شریفوں اور زرداریوں کی سیاسی تقریروں میں نہیں پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں دلچسپی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ زرداری خاندان کے ثبوت کے منہ سے انسانی حقوق کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سندھ کو پتھر کے دور میں دھکیلنے والے عمران خان کی قیادت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں دستانے، منہ پر ماسک، چہرے پر کورونا سے بچنے کی ڈھال۔ توشخانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش ہو گئے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی کی وجہ سے وکلاء اور ملزمان کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کے جج کو بھی عدالت پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ آصف زرداری کو بھی پیشی کا حکم۔ نیب کے مطابق ملزمان نے خلاف ضابطہ توشہ خانے سے قیمتی گاڑیاں لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل اور نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ نیب، FIA اور دیگر اداروں کو آزادانہ اور علیحدہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل اور نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق نہیں، کمیشن غیر جانبدار نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب کا رویہ مشکوک ہے۔ احتساب کے لیے مشیر رکھنا نیب کے غیر جانبدارانہ کردار کو مشکوک بناتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں کابینہ میں غیر منتخب افراد کی موجودگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وفاقی حکومت کا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ چینی کی قیمت نے پھر شہریوں کا منہ کڑوا کر دیا۔ پشاور میں چینی کی قیمت 110 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد اور راولپنڈی میں 100 روپے کلو بکنے لگی۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، ملتان اور سکھر میں 95 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں کھانے پینے کی 15 چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जेक्टिव रोल में आ जाएंगे, कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2-3 दिन से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। जो कहते थे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें बैकडोर से कोई एग्जीक्यूटिव किरदार मिल जाए। सिंध हुकूमत अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। वज़ीर आला सिंध ने सह जमाती कमेटी बनने की इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया। में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का निफाज ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आईनी ऑप्शन के बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आईनी ऑप्शन है। विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। ठट्ठा की केंजर झील में तेज रफ्तार कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई। 8 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद डूबकर जाँ बहक। तमाम का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से था। 3 अफराद को बचा लिया गया। केंजर झील पर फाइबर की बनी इंतहाई कमजोर कश्तियां खुलेआम चलाई जाती हैं। मल्लाह किराए के लालच में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाते हैं। लाइफ जैकेट फराहम करने का कोई तसव्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा बरकरार है। अवाम की जरा सी बेहतियाती वबा के दोबारा फैलाव की वजह बन सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सहित डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया, कहा कि बेहतियाती से हम दोबारा उसी सूरत हाल में वापस आ सकते हैं। केसेस बढ़ने और कम होने का इन्हिसार हमारे ऊपर है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मजीद 7 जिंदगियां ले गया। मजीद 488 अफराद में वायरस की तस्दीक। इत्तफाक़ी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 27 टारगेटेड लॉकडाउन हैं। कोरोना से हिफाजती इंतजाम के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और जुर्मानों समेत तमाम इक़दाम किए जाएं। शिमाली इलाकों में सयाहों की उन इलाकों में टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। मास्क के इस्तेमाल और मुआशरती फासले को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान अवामी फलाह बहबूद के कामों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे रही। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 28% अफराद ने अपनी राय का इजहार कर दिया। 16% ने जमात इस्लामी, 10% ने पीपल्स पार्टी तो 10% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फलाही कामों में आगे बताया। अचो था अचो पिया अचो ना असां तव्हांजो इंतज़ार कयूं पियूं। जेको आहे असां कमकार छॾे तव्हांजे इंतज़ार में बीठो आहियूं। सिंध के कच्चे के इलाके के डाकू लड़कियों की आवाज में फोन करके शिकार फांसने लगे। कश्मीर में कार्रवाई के दौरान नौजवान को अगवा होने से पहले पुलिस ने बचा लिया। नौजवान को खातून की आवाज में झांसा देकर बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 अफराद को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब कराया जा चुका है। नौशहरा में 5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ से जुर्म कर लिया। मुलजिम के घर से बच्ची के खून आलूद कपड़े भी बरामद। बच्ची के लापता होने के बाद 18 साला मुलजिम बच्ची की तलाश में रिश्तेदारों के साथ साथ घूमता रहा। नारोवाल यूनिवर्सिटी के टीचर को यूनिवर्सिटी लॉन में वलीमा करना महंगा पड़ गया। शादी मीडिया पर
सोशल मीडिया पर जबरदस्त तनकीद का सामना। वलीमे में यूनिवर्सिटी असातिज़ा और रिश्तेदारों समेत 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, इसलिए टीचर के वलीमे की इजाजत दी। कराची में प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कई इलाकों में स्कूल खुलवा दिए। दावा किया कि स्कूल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए हैं, अब तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने कार्रवाई की तो जल्द आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। पंजाब में भी प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का स्कूल खोलने का ऐलान। हुकूमती कार्रवाई की सूरत में लॉन्ग मार्च और धरनों की धमकी दे दी। वज़ीर तालीम सिंध ने खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि किसी को बच्चों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत की रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास बोले अगर कोई स्कूल खुला तो उसे फौरी सील कर दिया जाएगा। तलबा के एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान में ए लेवल के तलबा का मसला हल न हो सका। लाहौर में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा और तालिबात का नताइज के खिलाफ एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने रोड ब्लॉक कर दी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी मुजाहरे। नताइज पर बरतानिया में भी एहतजाज जारी। सीनियर हुकूमती वज़रा का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मामले में मुदाखलत करने पर जोर। तलबा का कहना है कि उनकी कम ग्रेडिंग की गई, जिससे उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ताकतवर लैंड माफिया ने खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकात की 78% जमीन पर कब्जा जमा लिया। महकमे का तकरीबन दिवालिया निकल गया। नाक़िस दाखिली ऑडिट और गैर माकूल ढांचे ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने नोटिस ले लिया। कब्जों को खत्म कराने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। कहा पहली मरतबा सूबाई असेंबली ने केपी वक्फ अमलाक ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। मुकामी इंतजामिया वक्फ अमलाक की जमीन काबिज़ीन से वागजार कराने में मुआवनत करेगी। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने पेशावर के शहरियों को बेजार कर दिया। शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रिपिंग से रोज कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल रही हैं। मुजाहिरीन ने वासक रोड 2 घंटे ब्लॉक रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत से मुताल्लिक़ मज़ीद अच्छी खबरें हैं। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर भेजे। पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क से सबसे ज्यादा रकम भेजी गई। जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा हुआ। जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया था। वो खुद नैब गए थे। नैब जब भी बुलाएगा वो खुद जाएंगे और तमाम सवालात का जवाब देंगे। कानून से बालातर कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी नैब लाहौर में पेश हो गए। हनीफ अब्बासी पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना घपलों का इल्जाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हनीफ अब्बासी को लाहौर नैब तलब करने की शदीद मजम्मत। कहा नैब में आजी गठजोड़ अवाम की खिदमत करने वालों को सजा देने के सियासी इंतकाम के मिशन पर है। नैब के मरकजी गवाह ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट असलम मसूद इंतकाल कर गए। असलम मसूद ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआद गवाह थे। असलम मसूद को सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। रावलपिंडी के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि आईन में गुंजाइश मौजूद है, 20 सूबे बन सकते हैं। वीओ न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में कराची के मसाइल के हल के लिए अहदाफ पर बात हुई।
पहले मरहले में नालों से तजावुजात हटाने का फैसला किया गया। अब NDMA और FWO शहर में तरक्याती काम आगे बढ़ाएंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन बारिश के बाद खेल बिल आखिर शुरू। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बैटिंग जारी। मनाजिर, घने जंगलात, बर्फपोश चोटियां, बादलों की आंख मचोली और चेयर लिफ्ट की सवारी। स्वात की वादी मालम जब्बा सयाहों की आंख का तारा बन गई। बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल और बहती आबशारों से सजे नजारों की तस्वीर भी लोगों की तवज्जो का मरकज। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया भर के सयाहों के लिए पाकिस्तान एक पुरकशिश मंजिल बन चुका है। सयाहती मुकामात पर 100% बुकिंग सबूत है कि पाकिस्तान में सयाहत बढ़ रही है। ये मुआशी सरगर्मियों और आवाम के बहाल होते एतमाद का वाज़ेह इज़हार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 157 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 7,73,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। भारत में अमवात 50,000 से ऊपर चली गई। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया रियासत विक्टोरिया में पहली मरतबा एक दिन में 25 अमवात सामने आ गई। इटली में केसेस बढ़ने पर पाबंदियां सख्त। लेबनान में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाने की तजवीज। दुनिया भर में 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा अफराद में से 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा सेहतयाब। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात पर भारतीय आपे से बाहर। सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया। आमिर खान पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। अमरीकी खातून अव्वल ने एक बार फिर शोहर ट्रंप का हाथ झटक दिया। 2 बार की कोशिश के बावजूद अपना हाथ पकड़ने ना दिया। वॉशिंगटन एयरबेस पर तैयारे से उतरते हुए मेलेनिया ने अपने लिबास पर हाथ रख लिया और इससे कबल इसराइल के दौरे के मौके पर मेलेनिया की ट्रंप के हाथ झटकने की वीडियो सामने आई थी। फिल्मी सितारों और बिजनेस टाइकून्स की शादियां भी महंगी और तलाक भी। जनूबी कोरिया के लगातार सांग जून की 1 साल बाद ही तलाक हो गई। $86 मिलियन के असासे जोड़े में तकसीम होंगे। माजी में सबसे महंगी तलाक दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की हुई। उनकी अहलिया को तलाक के बाद $35 अरब मिले। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन ने तलाक के बाद सुजैन को $86 मिलियन अदा किए थे। दुनिया में सिर्फ 25 खानदानों की दौलत 1.4 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। ब्लूमबर्ग ने 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। $215 अरब की आमदनी के साथ वॉल्टन खानदान पहले, $120 अरब अमरीकी डॉलर के साथ मास खानदान दूसरे और $109 अरब अमरीकी डॉलर के साथ डिकोच खानदान तीसरे नंबर पर मौजूद। सहवन में लाल शहबाज कलंदर का मजार हिफाजती इंतजाम के साथ आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। महकमा औकाफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद मजार 14 मार्च से बंद था। पहले ये बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? टीवी में आपका प्रोग्राम देखा था ना। बहुत अच्छा गाती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उर्फी।
कुर्सी, ये तो बहुत प्यारा नाम है। चलो अंदर चले। वैसे तो मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आपकी बात कुछ और है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। कई मकबूल फिल्मों में यादगार किरदार अदा करने वाली शबनम आज 78 बरस की हो गईं।